Hello friends, welcome to our YouTube channel. I'm Swati and from today we are going to start our English classes and so in these classes I'll be dealing with all your grammar section, your communication skills and also your writing section. So it will be a complete package for you guys. So let's start with our grammar section from today. So I'll be taking article for today. Articles. What do we understand by articles? Articles are basically used for a noun. It like an adjective, it modifies noun. जैसे कि हम जानते हैं आर्टिकल्स हमारे दो तरीके के होते हैं, दो टाइप्स में होते हैं. फर्स्ट इज डेफिनेट एंड सेकेंड इज इनडेफिनेट. फर्स्ट इज डेफिनेट एंड indefinite. Definite noun. What do we understand by definite noun? Definite noun क्या है? बट जब हम जानते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर नाउन के बारे में हमें पता है, मतलब उस नाउन के बारे में हमें पता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ के बारे में हम बता रहे हैं, तब उसको यानी किसी चीज़ को स्पेसिफाइड करता है, राइट? किसी एक पर्टिकुलर नाउन के बारे में जब हम बताते हैं, ठीक है, और इट इज डेफिनेट, राइट? एंड इनडेफिनेट इज व्हेन यू आर नॉट डेफिनेट विथ दैट नाउन. ठीक है, उस नाउन के बारे में आप डेफिनेटली नहीं कह सकते या कि आप यही कि यही एक पर्टिकुलर चीज़ है. सो इट इज नॉन डेफिनेट और नॉन specific or we can say common, right? For common nouns, common singular nouns, right? Or a particular common noun. So definite is indefinite. We have the. And indefinite articles, we have a and an, right? A and an. See, a, it is used before a word which is singular and also which begins with consonant or a vowel with consonant sound, okay, or a vowel with consonant sound. Whereas an, when we talk about an it is used before a word which begins with vowel that is a, E, I, O, U, right? A, E, I, O, U, vowel or which produce consonant sound, consonant which consonant with vowel sound, begins with vowels. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये हमेशा लोग याद नहीं रखते, भूल जाते हैं इस चीज़ को कि कॉन्सोनेंट तो है हमारा, राइट? ए हम लोग ऐसे वर्ड्स के साथ यूज़ करते हैं, उसके पहले यूज़ करते हैं जिन वर्ड्स के आगे जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है वो या तो कॉन्सोनेंट हो और एल्स वॉवल अगर हो भी तो उसका जो साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कॉन्सोनेंट हो. फॉर एग्जाम्पल आपका है यूरोपियन यूनियन, राइट? सो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आपका दो it is starting with beginning with vowels, but still the sound produced over here is consonant sound,
right? Then over here the examples like an hour, okay, an hour, an honest. तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, सिमिलरली सेम थिंग ओवर हियर, इट स्टार्ट विथ एच अ कॉन्सोनेंट बट द साउंड प्रोड्यूस ओवर हियर इज वोवल साउंड. सो ये डिफरेंस है हमारा indefinite article, sorry, and a and में, right? Let's see further rules of a and. Okay, let me put this. Further, when we talk about a and, okay, ये कहाँ कहाँ यूज होता है ये पहले हम लोग को पता होना चाहिए. तो इट इज यूज्ड बिफोर, हम इस तरीके से अगर पाई चार्ट बनाएंगे तो इट विल बी मोर इजी फॉर अस टू ग्रैब ऑल द थिंग. इट इज यूज्ड बिफोर, wait, it is used before singular noun which is countable, right? Singular noun which is countable. Secondly, it is used for certain expressions of quantity, certain expression of quantity, right? Certain expression of quantity, for example, a dozen, a couple, right? हम जब भी डजन, कपल ये सब यूज़ करते हैं तो हम उनके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज योर्स नेम्स ऑफ प्रोफेशन. Whenever we talk about names of professions like a doctor, for example, a doctor, an engineer, a lawyer, right? See, are you all getting up? आप सबको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि हम लोग ये देख रहे थे कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स हम कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज़ होते हैं. तो ये सारे रूल्स हैं जिसके लिए यूज़ होते हैं. नेक्स्ट इज एक और है एग्जाम्पल, सर्टेन क्लास ऑफ थिंग्स. ठीक है, व्हेन वी रिफर फॉर अ सर्टेन क्लास ऑफ थिंग्स लाइक class of things, for example, an apple is rich in certain class of things. For example, an apple is rich in vitamin. So we are talking about vitamins, na? Rich in vitamins. So here whenever we talk about class of things, indefinite articles are being used, right? So 1 2 3 4, okay, till now we have seen wherever it is used. एक और चीज़ हमें इसमें देखना बाकी है कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स हम हमेशा देखो, जैसे सिंगुलर नाउन विच इज़ काउंटेबल. ओके, हम ऐसे सिंगुलर नाउन्स के साथ हम
इंडेफिनेट आर्टिकल्स यूज़ करते हैं जो कि काउंटेबल है, राइट। सो एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर नोट डाउन करिएगा बिफोर आई स्टार्ट डेफिनेट आर्टिकल, सॉरी, कि जो भी ये आपका क्या बोलते हैं काउंटेबल नाउन्स है, इनके साथ तो आपका ए एंड एन यूज़ होता है, बट ये एक्सेप्शन है कि ये कभी भी आपका अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ नहीं यूज़ होगा। सो आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम ये इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए एंड एन, ये हमेशा नोट डाउन करिए कि हमारा जो ए और एन में यही डिफरेंस है। ए हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं उन वर्ड्स के साथ जो वर्ड्स हमारे कॉन्सोनेंट्स के साथ स्टार्ट हो, और एल्स हमारे जो अगर वॉवल्स हैं तो वॉवल विद अ कॉन्सोनेंट साउंड लाइक यूरोपियन एंड ऑल, ये आपको पता चल गया होगा। वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट एन इट इज़ यूज्ड with a word starting with, which is beginning with vowel और consonant with vowel sound। ये हमारा कॉमन डिफरेंस है जो कि हमेशा हम लोग नज़रअंदाज कर जाते हैं, तो इसको हमेशा हमें माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ हम अपने इंडेफिनेट आर्टिकल्स ख़त्म कर रहे हैं। नाउ विल स्विच ऑन टू डेफिनेट आर्टिकल। अभी तक हमने इंडेफिनेट आर्टिकल्स देखा, वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज हो रहा था। नाउ विल कम टू डेफिनेट आर्टिकल्स, द, विच इज द, ओके। सो वेयर डू वी यूज द? सो इट इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर, प्लूरल और काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। indefinite articles, as far as indefinite articles is concerned, it was used only before singular countable nouns, but when we talk about definite article, it is used before singular or plural or countable or uncountable, okay. It is used with all these kinds of nouns also, ठीक है। तो अब इसका for example, the book, the milk, okay. Next we have imaginary geographical lines, okay। तो जब भी हम imaginary geographical lines के बारे में बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारा है द इक्वेटर, ओके। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल है हमारा द इक्वेटर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन्स। जब भी हम जोग्राफिकल लाइंस के बारे में बात करते हैं तब भी हम उसके साथ द आर्टिकल लगाते हैं। नेक्स्ट, where do we use? Next we use it before names of scientific principles, theories and laws and etc, okay। तो इसके अलावा हम कहाँ यूज़ करते हैं? हम इसको यूज़ करते हैं नेम्स ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, जब भी हम किसी प्रिंसिपल्स के बारे, ठीक है, द डार्विन्स थ्योरी एंड ऑल, सो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं उनके साथ जो भी लॉज है, द न्यूटन्स लॉ, ऐसे। नेक्स्ट, वेयर डू वी यूज़ इट? अ फ्रेज कंपोज्ड ऑफ अ प्रॉपर और कॉमन नाउन, ठीक है। जब भी ऐसे फ्रेज यूज़ करें जिसके साथ प्रॉपर और कॉमन नाउन दोनों यूज्ड है, तो जैसे कि हमारा फॉर एग्जांपल वी हैव द न्यूयॉर्क सिटी, द रिवर नाइल, ठीक है। ऐसे फ्रेजेस के साथ भी हम द यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट और, दिस ऑब्जेक्ट इज ओवर हियर, ओके। प्लेस, ऑब्जेक्टिव और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्टिव, सॉरी, दैट इज़ यूनिक। सो यूनिक है जो हमारा, जैसे कि हम द अर्थ, फॉर एग्जाम्पल द मून, द स्काई, द स्टार एक्सेट्रा, जो भी ऐसे सच ऑब्जेक्ट्स जो हमारे यूनिक हैं। नेक्स्ट वी हैव नेम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इनके साथ भी हम यूज़ करते हैं, जैसे द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। Next we use it with whenever we write holy books name and all, like the Ramayana, the Mahabharata, we use the article the. We also use it with superlative degree, like जब भी, और ये first, second etc. For example, whenever we talk about superlative degree, the best lawyer, ठीक है। जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं तो उसके साथ भी हम आर्टिकल द यूज़ करते हैं, या तो फिर द सेकेंड मंथ, द थर्ड मंथ, द फोर्थ मंथ, ठीक है। राइट, देन
We come to when a singular noun represent a whole class. So जहाँ ऐसे singular noun जो पूरी class को refer करते हैं. For example, when we talk about this, the dog, sentence लेते हैं, the dog is a faithful animal. Okay, so here we talk about the dog. It is the dog is a faithful animal. तो हम यहाँ जो dog के बारे में बात कर रहे हैं, we are talking about the whole class. Okay, dog की पूरी class के बारे में बात कर, हम किसी एक particular dog के बारे में नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पर, इनके पूरे होल क्लास के बारे में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, तो ये यहाँ पर पूरा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारा जो द आर्टिकल है ये कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज़ हो रहा है. इसको आप लिख सकते हैं. ये आपका एक बहुत अच्छा सा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो गया है. एंड आई होप अभी आपको आर्टिकल के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो. एंड अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे वीडियोज़ और लेकर के आएँ, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and please do comment. Thank you.